ستار صاحب کا حکم تھا، بس اسے انکار نہیں کر سکتا تھا، اور ان کے دو ہاتھ ایک ہمارے نثار صاحب اور امین صاحب مجھے کھینچ کر یہاں کھڑا دیے گئے. بس اردو نغمہ نگاری میں حب الوطنی بہت خوب. ایک سیدھا مواد ہے، میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. مقالہ انشاءاللہ آپ کی نظر کروں گا سر انشاءاللہ. حب الوطنی کے فطری جذبات کے اظہار سے ہماری فلموں کے لیے لکھی جانے والی شاعری بھری پڑی ہے. فلمی دنیا مقامی اثرات سے آزاد نہیں ہے، خاص طور پر ہندی فلمیں جو اردو زبان کی فلمیں ہوتی ہیں مگر ہندی کے سرٹیفکیٹ حاصل کرتی ہیں. فلمی نغمہ نگاری کا تعلق فلموں کے موضوعات اور موقع و محل کی ضروریات سے ہوتا ہے، اور جب حب الوطنی کے موضوعات پر بے شمار فلمیں بنائی گئی ہیں. نغمہ نگاری کے حوالے سے جب حب الوطنی کے کئی رنگ ہمیں اردو شاعری میں ملتے ہیں، فلمی دنیا سے بلاور شعراء وابستہ رہے ہیں جنہوں نے حب الوطنی کے موضوعات پر کامیاب نغمے تخلیق کیے ہیں. ایسے شعراء میں شکیب بدایونی، ساجد لدھیانوی، کیفی اعظمی، گلشن باورا، گلزار، راجہ مہدی علی خان، مدرو سلطان پوری، جان نثار اختر، آنند بخشی، جاوید اختر، اسد بھوپالی جیسے شعراء کی ایک طویل فہرست ہے. نغمہ نگاری کے ساتھ موسیقی کا امتزاج دیر پا چھوڑتا ہے اور عوامی مقبولیت کا ضامن ہوتا ہے. آزادی ہندوستان سے قبل بنائی جانے والی چند فلموں کے موضوعات حب الوطنی اور آزادی کے جدوجہد ہوا کرتا تھا. ایسی فلموں میں حب الوطنی کے شاندار اور لاجواب نغمے لکھے گئے جو آج بھی زبان زد خاص و عام ہیں. آزادی کے بعد وطن عزیز کی ترقی اور خوشحالی کے موضوع پر بنائی جانے والی فلمیں جو حب الوطنی کے جذبات کو ابارنے والی کامیاب نغموں لکھے گئے ہیں. اردو شاعری کے وسعت سے فلمی نغمہ نگاری سے میڈیا ایک وسیع دائرے اظہار خیال ہے اور حب الوطنی کے ساتھ وطن سے وفاداری اور وطن کی قربانی اور جذبات کو ابھارتا ہے. جیسے کر چلے ہم فدا جان وطن ساتھیو، اب تمہارے حوالے وطن ساتھیو، اے میرے وطن اے میرے بچھڑے چمن. ایسے کچھ نغمے ہی، اور اس کے علاوہ میرے دیش کی دھرتی سونا گلے گلے سندھیرے ہوتی وغیرہ وغیرہ انشاءاللہ میں بتا پیش کروں گا. صاحبان، سیمینار کے ڈائریکٹر پروفیسر ستار صاحب اور آپ کے دستبازو امین اللہ صاحب اور ڈاکٹر نثار صاحب، ہمارے کالج کے صدر شعبہ ڈاکٹر محی الدین بادشاہ صاحب، فاضل مقالہ نگار حضرات و سامعین، السلام علیکم. میرے مقالے کا عنوان ہے اردو شاعری میں حب الوطنی، تحلیل و تجزیہ، علامہ اقبال کے حوالے سے. ظاہر سی بات ہے کہ اقبال پر بہت سارے مقالے آ چکے ہیں اور کل سے اور آج بھی پڑھے گئے. میں چاہوں گا کہ اقبال کے حوالے سے کوئی نہ کوئی نئی بات آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں، اور مجھے کہنا بھی مناسب لگ رہا ہے، اور میں شاید جائز فائدہ اٹھا رہا ہوں کہ میں ایک ایسی شخصیت کا پوتا ہوں جنہوں نے 1940 میں اقبال کے جاوید نامی کی سب سے پہلی شرح لکھی جو اقبال اکیڈمی لاہور سے شائع ہوئی. میری مراد سید شاہ صفوت اللہ بختیاری سے جو میرے دادا تھے. تو میں ان سب چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عمومی تحلیل و تجزیہ کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کر لوں گا اپنے مختصر سے وقت کے اندر، اور ایسا نہیں ہوگا کہ میں اپنا وقت کچھ زیادہ لوں.
अब यासिर साहब को वक्त देने से जी बहुत शुक्रिया। और मैं पहले ही बता चुका हूँ, यासिर साहब ने अपना वक्त मुझे दे दिया है 2-4 मिनट का। मैं यासिर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। ऐसी कोई बात नहीं। जिंदा शायरी का उर्दू में हो या किसी और ज़बान में फितरी अनासिर पर मुश्तमिल और फितरी अवामिल के ज़ेर असर वजूद में आती है। इसके असबाब व इल्ल और मुहर्रिकात भी फितरी होते हैं। ज़मीनी हक़ाइक़, तहज़ीबी विरासत, मौरूसी शूर और असरी हिस्सियत और तख्लीक़ी बसीरत के सतरंग जलवे दाखिली व खारिजी हैसियतों से जलवगर होते हैं। इस पस मंज़र में हुब्बुल वतनी के फितरी रुझान और मैलान की असरअंदाज़ी शायरी में उभर कर सामने आती है। आबाई वतन से वाबस्तगी और उनसियत के कई असबाब हैं। शूर के किसी दर्जे में तख्लीक़ कार अपनी जड़ों से वाबस्ता होता है और किसी भी कोशिश के बावजूद वो अपने इस रिश्ते को मुनक़ते नहीं कर पाता। इसकी मिसाल इस तरह पेश की जा सकती है कि उर्दू शायरी की कोई भी सिंफ हुब्बुल वतनी के वसी तर मफ़हूम से खाली नहीं है। उर्दू शायरी की कोई भी सिंफ हुब्बुल वतनी के वसी तर मफ़हूम से खाली नहीं है। समाजी, सियासी, माशी और मुआशरती मौज़ूआत पर इजहार ख़याल के मुख्तलिफ पैराए दरअसल हुब्बुल वतनी ही के ज़ैल में आते हैं। उर्दू गज़ल में हुब्बुल वतनी की जलवागरी मुख्तलिफ रंगों में होती है। हसरत की गज़लें हुब्बुल वतनी के अजीब ज़ाविये पेश करती हैं। मरसिया जैसी सिंफ में हुब्बुल वतनी का ज़ुहूर यूँ होता है कि वाक़े करबला को हिंदुस्तानी पस मंज़र में बयान किया जाता है। मसनवियों में हुब्बुल वतनी का इज़हार मुख्तलिफ अंदाज में मिलता है। दखनी मसनवियाँ ख़ास तौर पर, और फिर नवाब वाजिद अली शाह की मसनवी हुस्न अख्तर में लखनऊ से फ़िराक़ की देन है। हुस्न अख्तर हुब्बुल वतनी का फितरी तकाज़ा हो या सियासी नारा, इसके मुहर्रिकात व मज़ाहिर मुख्तलिफ वजूहात से ज़ुहूर पज़ीर होते हैं। अब मैं उन वजूहात को मुख्तसर बयान कर दूँ। फितरी बुनियाद ये है कि वतन से वाबस्तगी, उनसियत, मुनासबत, इसके लिए एक मुहावरा है हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, और ये सब चीज़ें जो हैं फितरी तकाज़े हैं हुब्बुल वतनी के। इनके तहत हुब्बुल वतनी की शायरी वजूद में आती है। हालात का इख्तिज़ा है जिसकी वजह से हुब्बुल वतनी की शायरी वजूद में आई है। हालात के इख्तिज़ा से मेरी मुराद ये है कि नवाबादियाती दौर जो था हमारे वतन का, अंग्रेज़ों की ग़ुलामी के दौर में, तब हुब्बुल वतनी की शायरी का वफूर का ज़माना था और इस तरह की चीज़ें बहुत सारी उर्दू शायरी में दर आई। नवाबादियाती ज़माने का कलाम और बाज़ नज़मों को अंग्रेज़ों ने जो ज़ब्त कर लिया था वो सरासर हुब्बुल वतनी ही की नज़में थी। और तीसरा जो तकाज़ा है दाइया है, जिसकी वजह से हुब्बुल वतनी के अशार शोरा ने कहे हैं, हुब्बुल वतनी पर उकसाने वाली जो चीज़ है वो जो है हुब्बुल वतनी का वफूर शायद है वतन से दूरी और महजूरी के बाइस ज़्यादा पैदा होता है। मेरी मुराद है अरबी में महजर अदब एक तख्लीक़ पाया। लबनान के जो ईसाई लोग थे अपने वतन से जब दूर हुए तो उन्होंने महजर लिटरेचर पेश किया था। वतन से जब दूर होते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि फितरी तौर पर हुब्बुल वतन का जज्बा जलवगर होता है। इंग्लिश में डायस्पोरा लिटरेचर कहते हैं, जिसके तहत एनआरआईज़ जो लोग अपने वतन से दूर हैं उन लोगों ने हुब्बुल वतनी की जो है चीज़ों को पेश किया था। मैंने सईद नज़र साहब के कलाम में मुहाजरत की झलकियों पर एक छोटा सा मज़मून भी लिखा था, तो हुब्बुल वतन वहाँ पर उजागर होता है। तीसरी बात हो गई। और चौथी बात यह है कि सियासी वजूहात हुब्बुल वतनी पर शोरा को कहने के लिए आमादा करती हैं। सियासी वजूहात की मैं 1 मिनट के लिए वजाहत अर्ज़ कर दूँ, वो ये है कि हमारे वतन अजीज़ को आज़ादी के बाद जो मुल्क की तकसीम का अलमिया पेश आया और यहाँ पर जो दो कौमी नज़रिया था, जिसकी वजह से RSS राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और VHP और BJP की जो हुकूमत थी और इन लोगों का नारा था कि ये जो ये कौम इस मुल्क में ये तकसीम की जिम्मेदार है और हम लोग इसके ज़हनी तौर पर मरूब होते रहे हैं और हमको ये जो है अपने दिफा के लिए पेश करना पड़ रहा था। और ये बताया गया कि आपकी अक़ीदतों के जो मज़ाहिर हैं वो इस मुल्क में नहीं है। समंदर पार के मकामात से आप अपनी जज्बाती वाबस्तगी और लगाव रखते हैं। इस मुल्क से तहजीबी सतह पर आप ज़हनी अक़ीदे की बुनियाद पर वाबस्ता नहीं है। धरती माँ को नहीं पूछते हैं आप और गंगा जल को पवित्र नहीं समझते हैं आप, और इस तरह की जो चीज़ें थी। तो इसके जवाब में हमारे शोरा ने हुब्बुल वतनी को खास तौर पर ऐसा फोकस किया है कि हर मुशायरे में हुब्बुल वतनी पर शोरा के पास कलाम मिलता है। और आजकल मुशायराबाज शोरा जो है हुब्बुल वतनी के कलाम को ज़्यादा पेश करते हैं और यही चीज़ मार्केट में चल रही है। और मैं पांचवी चीज़ ये बताना चाहूँगा कि हुब्बुल वतनी का जो कलाम है उसके वजूद में आने की एक वजह यह है कि रवाज और फैशन के तौर पर लोग हुब्बुल वतनी पर लिख रहे हैं। हुब्बुल वतनी पर लिखने
लिखना एक फैशन सी चीज़ है और मौखती किस्म की शायरी होती है, जैसे कि सिद्दीक नकवी साहब ने कहा कि 15 अगस्त हो, 26 जनवरी है और इस तरह के कौमी मौक़े हैं, इस पर जो कलाम वजूद में आता है वो भी हुब्बुल वतनी का। ये 5 चीज़ें मेरे समझ में आई जो हुब्बुल वतनी के कलाम को जो है तख्लीक़ का बाइस बनते हैं। हुब्बुल वतनी के मुज़मरात और नुक़सानात और मुज़र्रात भी बहुत सारे हैं। हुब्बुल वतनी से एक तो तंग नज़री और महदूद तनाज़ुर पैदा होता है, और जो है हुब्बे वतन का जो नारा है वो अपने वतन से मोहब्बत और दूसरे अवतान से मोहब्बत के बजाय बैर रखने का अगर जज्बा इससे आ जाता है तो ये हुब्बुल वतनी यहाँ से नुकसानदार हो जाती है। और जिसकी जानिब शाहिद साहब ने इस बार कहा था, जंगो जदल का जो जवाब पेश किया जाता है वो भी हुब्बुल वतनी ही का एक बहाना है, और हुब्बुल वतनी ही के पैराए में जंगो जदल के जवाब को पेश किया गया। इसी हुब्बुल वतनी की वजह से इलाकायत का फरोग हो रहा है। मुझे आज इस सेमिनार में कहना है बेबाक तौर पर कि इलाकायत का जो फरोग हो रहा है वो जो है महदूद पैमानों पर, यह सब जो है हुब्बुल वतनी ही का एक ज़िम्मी पहलू है। अगर हम बात करें तेलंगाना की, और होते होते कहाँ तक इंसानियत को बांटा जाएगा, कितने हिस्सों में तकसीम किया जाएगा और इसका नतीजा क्या होगा, यहाँ पर एक और बात मैं बताऊँ। फस्तायत जो है वो भी हुब्बुल वतनी ही का, हुब्बुल वतनी की नाजायज़ औलाद है। फस्तायत हुब्बुल वतनी की नाजायज़ औलाद है, यानी कि फस्तायत भी इसके ज़िम्मे में। और मुझे ये कहना है कि जर्मनी में दूसरे जगह जी, जर्मनी में वही मैं आ रहा हूँ। जर्मनी में हिटलर की जो मिसाल है नाज़िज़्म को जो उसने कहा और कहा हुब्बुल वतनी है जर्मन कौम सारी दुनिया की सबसे आला तरीन कौम है और तमाम दुनिया मगलूब और महकूम और हमारे मातहत रहने के लिए हम लोग गालिब हैं, ये सब हुब्बुल वतनी ही की वजह से है। अब यहाँ पर मैं इक़बाल के इस मौजू पर आता हूँ। अल्लामा इक़बाल जैसा अजीम शायर मशरिक़ जो शायर है वो हुब्बुल वतनी का जो नारा देता रहा, दरअसल हुब्बुल वतनी का मुखालिफ है। कल जितने मकालात पेश किए गए, मैं अपनी बात मुझे अपने तौर पर कहने दीजिए, अल्लामा इक़बाल जैसा शायर जो है हुब्बुल वतनी का शदीद तरीन मुखालिफ शायर है। इक़बाल के यहाँ बहुत तज़ाद मिलता है। उन्होंने जब हिंदुस्तान पर जो कुछ भी कहा था वो तराने हिंदी वगैरह, फिर तराने मिली, हम ये कहकर नहीं यहाँ पर अपने आप को दामन बचा सकते कि वो वतनी शायरी थी, फिर ये कौमी और मिली शायरी हो गई, फिर ये उनके जो है तदरीज हुई, ऐसा नहीं है। बाकी तरह जो इक़बाल का पहला मजमूआ कलाम है उसी के हिस्से शुभम में इक़बाल की एक नज़्म है जिसका उन्वान है वतनियत, और वतनियत पर उन्होंने खुद ही वजाहत कर दी कि यानी वतन बहैसियत एक सियासी तस्वुर के। और इस नज़्म में इक़बाल ने खुलकर हुब्बे वतनी की मुखालिफत की है। इक़बाल की नज़्म में मैं पेश करना चाहता हूँ। इस दौर में मैं और है, जाम और है, जम और, साक़ी ने बिना की रविश लुत्फ़ो सितम और, मुस्लिम ने भी तामीर किया अपना हरम और, तहज़ीब के आज़म ने तरशवाए सनम और, इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है। यहाँ पर खुलकर पाकिदानी से शुरू हो जाती है, तो पहला मजमूआ कलाम। फिर आगे कहते हैं ये बुत के तराशीद है, तहजीब नबी है, कारत करे काशान दीन नबवी है, बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से खवी है, इस्लाम तेरा देश है तू मुस्तफ़वी है। यानी वो यहाँ पर वतनियत के दायरों में जो इंसानियत को तकसीम किया गया उसके खिलाफ होते हैं, और वो यहाँ पर खिलाफत वर्सेस नेशनलिज्म, एंटी नेशनलिस्ट किस्म की नज़्म है। आगे लिखते हैं नज़ारे देरीना ज़माने को दिखा दे, ऐ मुस्तफ़वी खाक में इस बुत को मिला दे। एक और मैं पढ़ लूँ तो कैद मुकामी तो नतीजा है तबाही, रह बहर में आज़ाद वतन सूरत माही, है तर्क वतन सुन्नत महबूब इलाही, दे तू भी नबूवत की सदाकत पे गवाही, गुफ्तार सियासत में वतन और ही कुछ है, इरशाद नबूवत में वतन और ही कुछ है। फिर जो यहाँ पर मैं 1-2-3 बातें आपके सामने पेश कर दूँ, 1-2 मिनट मज़ीद देना चाहूँ मैं बहुत मुअद्दबाना दरखास्त के साथ, हालांकि मेरा वक्त हो चुका 10 मिनट। मैं को बेन जॉनसन ने कहा कि हुब्बुल वतनी नालायक की आखिरी पनाह का है। हुब्बुल वतनी के मुखालिफत में इतने हमारे पास मुफक्किरीन के अक़वाल मिलते हैं। बर्नार्ड शॉ कहता है कि दुनिया में सुकून उस वक्त तक पैदा नहीं हो सकता जब तक कि हुब्बे वतन को नस्ल इंसानी से न ख़त्म कर दिया जाए। ऑस्कर वाइल्ड ने कहा कि हुब्बुल वतनी एक मज़मूम हथियार है। टॉल्स्टॉय कहता है हुब्बे वतन ऐसा उसूल है जो होलसेल कातिलों की तरबियत की मुदाफ़ात करता है। फौज बना रहे, आप दूसरे ममालिक से जंग लड़ना चाह रहे हैं, ये भी हुब्बे वतन के पस पर्दा है। और फिर जो है गेस्टो हीरो कहता है हुब्बुल वतनी एक तवहुम परस्ती है। हुब्बुल वतनी एक तवहुम परस्ती है जो मजहब से ज़्यादा ज़ख्म देने वाला सफ़ाक और गैर इंसानी तस्वुर है। हुब्बुल वतनी एक मसनूई तौर पर तैयार करदा गैर फितरी और मुनज़्ज़म करदा झूठ के जाल में परवरदा चीज़ तस्वुर है, और इस तवहुम परस्ती
پرستی کے ذریعے صفاقی کو فروغ دیا جا رہا ہے. اور ایما گولڈمین کی ایک آخری بات میں پیش کر دوں کہ یقیناً دھوکہ دہی ہٹ دھرمی اور انا پرستی حب الوطن کی ضروریات میں سے ہے، اور اس کے ذریعے سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں انسان اپنے آپ کو بانٹ کر دوسرے ٹکڑوں میں بسنے والوں کو اپنا دشمن اور مخالف سمجھ کر اس کے خلاف جو جذبہ رکھتا ہے، تو یہ سب اس کے لیے ہے. 1 منٹ کی مزید اجازت میں چاہوں گا ایوان صدارت سے. اور دیجیے وہ 1 منٹ بولتے بولتے 4 منٹ ہو جاتے ہیں. 10 منٹ میرے تھے، یاسر صاحب کے 5 منٹ میرے حصے میں آئے، اس طرح 15 منٹ ہونا چاہیے تھا میرا. نہیں ورنہ اگر آپ یاسر سمجھے تو میں اپنے مقالے مجھے میری خوش قسمتی ہے کہ سیمینار کا آخری مقالہ ہے، مجھے موقع ملا تو جو بھی وقت بچ جاتا ہے وہ میرے حصے میں آنا چاہیے لازمی طور پر. آگے علامہ اقبال جو حب الوطنی کے اتنے راز الاپتے نظر آتے ہیں، در حقیقت حب الوطنی کے بارے میں مختلف و متضاد رویوں کی حامل ہیں. وہی علامہ اقبال جو خلافت کا نعرہ لگاتے ہیں، اور خلافت جو 1924 میں ترکی کی خلافت کا خاتمہ ہوا، وہی اقبال 1922 میں انگریزی حکومت سے نائٹ ہوڈ کا خطاب حاصل کرتے ہیں، سر کا خطاب حاصل کرتے ہیں. جب سے ان کے صرف 3 سال پہلے پنجاب میں ایک بنگالی شخصیت کو سر کا خطاب دیا جاتا ہے اور وہ انکار کر دیتے ہیں. تو اقبال کے فکر اور عمل میں شدید تضاد ہمیں نظر آتا ہے، اور یہ مذہب کی جو تعبیر و تفہیم اقبال کے ہاں ملتی ہے، اس کے جلو میں نعرہ بازی قسم کی شاعری ہے جس میں جذباتیت کو فروغ دیا گیا ہے. ایک اور بات میں بتاؤں کہ اقبال نے انگریزوں کی غلامی کو شعوری طور پر قبول کر لیا تھا. ان کے ہاں تو آزادی کا کوئی وہ کانسیپٹ نہیں ملتا جو ان کے ہم عصر شعراء کے ہاں ملتا ہے. اقبال کے ہاں آزادی کا وہ شعور یا وہ شعوری کوشش ان کے کلام میں کسی بھی افق سے نظر نہیں آتی جو ان کے ہم عصر شعراء کے پاس تھی. یہ اقبال 1938 میں انتقال ہوتا ہے اور اس وقت تک حالات بہت بدل چکے تھے. ایک انگریز وائس رائے جو لاہور میں تھا، اس کا اقبال نے قصیدہ لکھا. اردو میں تو یہ دستیاب نہیں ہے، شاید فارسی میں لکھا ہوگا، نیٹ پر انگریزی میں دستیاب ہے. انگریزوں کی مخالفت اور حریت کے جذبے کا شدید بہتان ہمیں نظر آتا ہے اقبال کے ہاں. ایک اور واقعہ میں بیان کرنا چاہوں گا. دہلی میں 1937 کے اواخر میں ایک جلسہ ہوتا ہے دہلی کے علاقے پل بنگش میں. وہاں پر شیخ الاسلام حسین احمد مدنی صاحب تقریر کرتے ہیں اور وہ اسٹیٹمنٹ یہ دیتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں قومیں وطن سے بنتی ہیں. وہاں پر کانگریسی اور لیگی دونوں قسم کے رپورٹرز تھے. احسان اخبار کے رپورٹر نے یہ رپورٹ کی کہ میں اپنے وقت کی جو ہے میں ایک بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اقبال نے ایک نظم لکھی حسین احمد مدنی پر، اور اس میں وہ بولتے ہیں کہ سرود برسر ممبر کی ملتس وطنس، تو اس کی مخالفت کی. اور وطنیت کے جذبے کا اقبال کے ہاں جو تصور اور پہلو ملتا ہے وہ نہایت منفی پہلو ہے، اور اقبال کے ہاں بہت سارا تضاد ہمیں ملتا ہے. اور اقبال کے حوالے سے چند نئے افق ہمیں حب الوطنی کے زاویے میں سننے کے لیے ملتے ہیں. اور 10-20 سیکنڈ میں باقی ہیں اور میں 10-20 سیکنڈ میں کیا کروں، 10-20 سیکنڈ شکریہ کے ساتھ وہ آپ کی حسن سماعت کا شکریہ. سلام.